So Namaskaram and good morning all. Let's start with the section 12, time of supply of goods. Last lecture we had concluded time of supply in case of services. Now this lecture we are focusing on time of supply of goods. So as you are already aware of, this is given in section 12 and sections 12 are having subsection 6 subsections. Section 12 is having 6 subsections and obviously there are various clauses. Subsection 1 will just define what is the time of supply. That's all. That's the job of section 12. So let's have look at this particular section 12 subsection 1. Section 12 subsection 1, time of supply in case of goods. What is the time of supply? So time of supply is the liability to pay tax on goods. Liability to pay tax on supply of goods shall arise at a time of supply as determined under section 12. This is the language written under section 12 subsection 1. So this is applicable for the goods. This is what the intention or the indication of section 12 subsection 1. Now you know that first section that we always study is section 12 subsection 2, which is the ordinary case or a normal case or a flagship case, which is a forward charge mechanism. Whenever goods are supplied under forward charge, and you know that goods can be supplied under reverse charge as well, but there are very few goods which are under reverse charge. Majority goods or 99% goods are under forward charge mechanism. So this is the section that will come to your mind all the time. So what is the time of supply in case of forward charge here? Time of supply is equal to date of invoice or due date of invoice under section 31, whichever is earlier. Now you can see here, we are not comparing date of payment the way we have compared it in service in case of services. Services जब हम कर रहे थे तो वहां पे हमारा focus क्या था? We had time of supply, the date of invoice या date of payment whichever is earlier, and the second side was date of supply of service or date of payment whichever is earlier. So this is what we have studied there, and therefore I told you, even if you take advances in again the services to be provided in a future, GST will be levied for sure. But in case of goods, please understand how this industry operates. In case of supply of goods, whenever one particular person comes and he places an order with a manufacturer, okay, I want 10,000 quantity of so and so goods, okay, 10,000 quantity of so and so goods, and here the each quantity will be sold or each piece will be sold for 10 rupees. So the contract is for 1 lakh rupees. The contract is for 1 lakh rupees. Now please understand the costing mechanism behind this. When this particular buyer is placing an order with a supplier, this supplier may demand for some advances. Now, why does that particular supplier ask for the advances? So he may ask advances to the extent of maybe 50% or 60% or 40%. So let's consider he has asked for the advances of 40%. So out of this 40%, that means the buyer, the prospective buyer is supposed to pay 40,000 as the advance money. Now, what is the use of this advance money? What this particular supplier will do with this particular advance money? So this supplier will go to the market and he will buy the raw material. He will buy the raw material, he will buy the ingredient, he will spend money on completion of this 10,000 quantity. Now what government was saying? Government was saying, okay, we want GST on this 10,000 rupees, this 40,000 rupees as well. Now the demand of the supplier was this: sir, we have taken hardly 40% advance money against the contract order of 1 lakh rupees. Now 40% doesn't give us a liberty to pay some amount as a GST by considering this as an inclusive of GST. अगर हम इसमें से GST भर देंगे तो सर रॉ मटेरियल लाने के लिए हमारे पास पैसे नहीं बचेंगे. आप ऐसा प्लीज कंसीडर करो. And when GST was introduced in India, that time in 2017, let me tell you, advance received against supply of goods was taxable और ये 40,000 के ऊपर टैक्स भरना पड़ता था. But then there was a protest in Surat, in Gujarat, in many places of country, and बहुत सारे जो business organizations होते हैं, associations होते हैं, उन्होंने representations लिखे गवर्नमेंट को कि that you cannot take GST against advance in case of supply of goods. In case of supply of service चल जाता है, because supply of service में आप खाली अपना इंटेलिजेंस यूज करते हो, आप अपने खाली लेबर यूज करते हो, रॉ मटेरियल यूज नहीं होता.
यहाँ पे रॉ मटेरियल यूज होता है, रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए, गुड्स के केस में रॉ मटेरियल यूज होता है, और रॉ मटेरियल परचेस करने के लिए जो मैंने एडवांस लिया है उसके ऊपर आप जीएसटी नहीं ले सकते सर, मेरा वर्किंग कैपिटल इससे फॉल डाउन हो जाता है। तो ऐसा बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, एंड ये प्रोटेस्ट उनके गवर्नमेंट ने नोटिफिकेशन नंबर 66 लॉन्च किया। जब नोटिफिकेशन नंबर 66 आया, दैट गिव एन रिलैक्सेशन। देखो देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, नो जीएसटी ऑन एडवांस इन रिस्पेक्ट ऑफ गुड्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सर्विस के अगेंस्ट नहीं, दिस नोटिफिकेशन इज एप्लीकेबल ओनली फॉर गुड्स, नो जीएसटी ऑन एडवांस इन रिस्पेक्ट टू गुड्स। और ये नोटिफिकेशन कब आया है? नोटिफिकेशन नंबर 66 2017, ये डेटेड है 15 नवंबर 2017। जीएसटी कब आया था? 1 जुलाई 2017। तो गवर्नमेंट टुक देयर ओन टाइम टू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम ऑफ द सोसाइटी और इंडस्ट्री विच इज ऑपरेटिंग इन गुड सप्लाई, और उन्होंने यहाँ पे बोला ठीक है, गुड्स के केस में एडवांस के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, एंड दिस नोटिफिकेशन इज वैलिड इवन टिल डेट। ठीक है ना, अभी तक ये विड्रॉ नहीं हुआ है। तो वी मस्ट अंडरस्टैंड कि डेट ऑफ पेमेंट का और गुड्स का कुछ लेना देना नहीं होता। तो बच क्या गया? अभी बच गए दो ही डेट, डेट ऑफ इनवॉइस या ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस अंडर सेक्शन 31। ये इनवॉइस की तो बात मैंने पहले भी की थी। मुझे एक बात बताओ, आज अपनी फैक्ट्री में से माल निकल रहा है, ठीक है ना, आज अपनी फैक्ट्री में से ट्रक लोड हो रहा है, तो इनवॉइस कब इश्यू होना चाहिए? आज की डेट है अपनी 7 नवंबर, ठीक है ना, 7 नवंबर 2020, दिस इज द टुडे डेट। 7 नवंबर 2020 पे अपना ट्रक में गुड्स लोड होके जाने वाला है, ठीक है ना। तो इनवॉइस कब इश्यू होना चाहिए मुझे बता दो ना प्लीज। व्हाट इज योर अजम्पशन? इनवॉइस सप्लाई के बाद होना चाहिए कि अभी इसके पहले होना चाहिए? जल्दी बोलो, इनवॉइस कब इश्यू होना चाहिए? जल्दी बोलो ना, गुड्स के केस में इनवॉइस कब इश्यू होना चाहिए? प्लीज रिप्लाई। ओके, तो हमारी बात क्या हो रही थी कि ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या होगा इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। सो ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस जो लिखा गया वो सेक्शन 31 में लिखा गया है, एंड सेक्शन 31 का जो जनरल प्रोविजन है, सेक्शन 31 सब सेक्शन 1, इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स, ठीक है ना, वो क्या बोलता है? देखो यहाँ पे ध्यान दो, अगर सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, 31 सबसेक्शन 1 क्लॉज ए क्या बोलता है? देखो, इफ अ सप्लाई इन्वॉल्व्स मूवमेंट ऑफ गुड्स, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था कि अपने मुंबई से गुड्स निकल के पुणे जा रहा है, ठीक है ना, मुंबई टू पुणे जा रहा है गुड्स, डेस्टिनेशन पुणे है, तो बीच में टोल नाका लगेगा, एंड टोल नाका पे चेकिंग होगा, ठीक है ना, ऑक्ट्रा वगैरह का जहाँ नाका होता था वहां पे अभी जीएसटी का चेकिंग होता है, एंड विदाउट इनवॉइस यू कैन नॉट सप्लाई द गुड्स। अगर विदाउट इनवॉइस अगर आप गुड्स सप्लाई कर रहे हो तो उसको स्मगलिंग माना जाता है, एंड स्मगलिंग मानने के बाद नॉट ओनली ट्रक ओनर बट ऑल्सो सप्लायर विल बी अंडर ट्रबल, ठीक है ना, उन लोगों के ऊपर अच्छी खासी पेनाल्टी लग सकती है, and therefore neither transporter nor supplier should take the risk of supplying the goods without issuing the invoice. इसलिए the due date of invoice is before or at the time of supply of the goods। तो ये जो है ना, ये सप्लाई होने के पहले ही होना चाहिए। देखो, सप्लाई इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स होना चाहिए, तो ये देखो क्या होता है, ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस, DDOI मतलब ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस इज इक्वल टू डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, ऑन और बिफोर रिमूवल ऑफ गुड्स आपको ये इनवॉइस इशू करना चाहिए। पहले इशू करे हुए कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन लास्ट डेट जो होगा वो रिमूवल का होगा, रिमूवल इज द लास्ट मोमेंट। तो मेरे एग्जाम्पल में अभी, ठीक है ना, जो एग्जाम्पल मैंने अभी आपको बताया हुआ है, उस एग्जाम्पल में 7 नवंबर को जो गुड्स निकलने वाले थे फैक्ट्री में से, तो 7 नवंबर इज द लास्ट डेट ऑफ इश्यूएंस ऑफ इनवॉइस, इस दिन इनवॉइस इशू हो ही जाना चाहिए। लेकिन जब आप कस्टम्स लॉ पढ़ोगे, कस्टम्स लॉ, तो कस्टम्स लॉ में आपको एक प्रोविजन पढ़ाया जाएगा वेयर हाउसिंग का, ठीक है ना। अब वेयर हाउसिंग का प्रोविजन क्या होता है, कभी कभी इंपोर्टेड गुड्स जो होते हैं, या इंपोर्टेड की जरूरत नहीं है, ऐसे डोमेस्टिक में भी होता है, लेकिन हम जो पढ़ते हैं ये कॉन्सेप्ट वेयर हाउसिंग वो कस्टम में यूजुअली पढ़ते हैं। तो ऐसे बड़े बड़े वेयर हाउसेस होते हैं, आप पनवेल वगैरह साइड जाओगे, वाशी साइड जाओगे, तो आपको भी बड़े बड़े वेयर हाउसेस मिलेंगे, ठीक है ना। इन वेयर हाउसेस में गुड्स को स्टोर किया जाता है। अब क्या होता है, जो इसका सेलर होता है, ठीक है ना, गुड्स का जो सेलर होता है वो क्या करता है, इसमें से एक सैंपल 2 सैंपल लेके चले जाता है और बायर सर्च करते रहता है। तो गुड्स यहाँ पे ही रहते हैं वेयर हाउस में, ठीक है ना, और ये बंदा सैंपल लेके बायर सर्च करते रहता है। ये सप्लायर है और ये रेसिपिएंट है, पकड़ लो, ये बायर है। तो इसने इसको सैंपल दिखाया कि ये देखो ये सैंपल है,
एंड इस सैंपल का अगर आपको अच्छा लगता है, ये इसकी प्राइस है, इसको इस गोडाउन में स्टोर किया हुआ है, तो अब दोनों, इसको सैंपल अच्छा लगा, प्राइसिंग भी ठीक है, अब दोनों कहाँ पे आएंगे, गोडाउन में आएंगे, ठीक है ना। अब गोडाउन में आके बात हो रही है कि ये गुड्स आप ले लो, ठीक है ना, यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, गुड्स सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, इनवॉइसिंग हो गया, पेमेंट आ गया, सब हो गया, लेकिन गुड्स का मूवमेंट नहीं हुआ। गुड्स पहले भी वेयर हाउस में थे और अभी भी वेयर हाउस में ही है। अब जरा समझने का ट्राई करो, गुड्स पहले भी वेयर हाउस में थे, अभी भी वेयर हाउस में, लेकिन गुड्स सेल हो चुके हैं। तो वी कैन समटाइम्स सेल द गुड्स विदाउट मूवमेंट ऑफ द गुड्स। मूवमेंट नहीं है इसमें, बिना मूवमेंट के गुड्स सेल हो चुके हैं। अब बिना मूवमेंट के गुड्स जब सेल होते हैं तो ये प्रोविजन लगेगा ही नहीं। तो हमने फिर क्या बनाया, तो उन्होंने दूसरा प्रोविजन बनाया, सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी, इन एनी अदर केस। एनी अदर केस मतलब जहां पे मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है, गुड्स पहले भी वहीं पे थे, बिफोर सप्लाई भी वहीं पे थे, आफ्टर सप्लाई भी वहीं पे थे, तो वैसे केस में ड्यू डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, ड्यू डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, तो जिस दिन पे क्या हो जाएगा, डिलीवरी ऑफ गुड्स होगा, उस दिन पे, जिस दिन पे ये कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, जिस दिन पे यहाँ पे पावर सबमिट कर दिया, और वेयर हाउस जो रिसिप्ट होती है उसका ट्रांसफर हो गया सप्लायर से बायर के यहाँ पे, तो आप समझो ये जो डिलीवरी वाली बात है, ये जो डिलीवरी वाली बात है, इस दिन पे इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए, ऐसा ये प्रोविजन बोलता है। तो सप्लाई डजंट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। फिर कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस, वो प्रोविजन मैंने अभी तक पेंडिंग रखा हुआ है। मैं बेसिक प्रोविजन आपको पहले पढ़ा रहा हूँ, पहले बेसिक प्रोविजन पढ़ लेते हैं। तो टाइम ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स मैंने क्या बताया, फॉरवर्ड चार्ज में डेट ऑफ इनवॉइस या डेट ऑफ ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस अंडर सेक्शन 31। अब ड्यू डेट ऑफ इनवॉइस क्या होता है आपको पता ही चल गया, ठीक है ना। अगर मूवमेंट इन्वॉल्व है तो डेट ऑफ रिमूवल ऑफ गुड्स, और मूवमेंट इन्वॉल्व नहीं है इन एनी अदर केस डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ द गुड्स, ऐसा होता है यहाँ पे। और नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 डेटेड 15 नवंबर 2017 क्या बोलता है, ये बोलता है कि आपके एडवांस के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। अब आपके एडवांस के ऊपर टैक्स नहीं लगेगा, एडवांस कितना भी होने दो, लेस देन 1000 होने दो, मोर देन 1000 होने दो, एडवांस के ऊपर टैक्स लगना ही नहीं, तो वो 1000 रुपीज का जो एग्जम्पशन था दैट बिकम्स एन इररिलेवेंट इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ गुड्स। सर्विस के केस में अभी भी वो रिलेवेंट है, लेकिन गुड्स के केस में इट बिकम्स एन इररिलेवेंट प्रोविजन। तो लेट्स सी 1 or 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस। तो ये अपना पूरा बेयर एक्ट है, यहाँ पे बेयर एक्ट के बाद यहाँ पे उन्होंने पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। हम डायरेक्टली एग्जांपल्स पढ़ के देखेंगे। A Limited enter into an agreement with B Limited to supply 100 kg of raw material। तो कॉन्ट्रैक्ट कितने का हो गया, अग्रीमेंट कितने का हो गया, 100 kg of raw material का। However, A Limited supplies only 80 kg of raw material and issue the invoice for the same। तो कुछ गलत किया क्या इन्होंने, अभी कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर इनके पास 100 kg का आ गया है, लेकिन सप्लाई करने के टाइम पे 80 kg किया, तो इनवॉइस भी तो 80 kg का ही बनना था, और जीएसटी भी 80 kg पे ही भरना पड़ेगा, जितना सप्लाई हुआ उतने पे ही भरोगे ना जीएसटी। Here the supply would be deemed to be having made in respect of 80 kg of raw material, that is to the extent covered by the invoice. Therefore, the provision relating to time of supply will also be applicable to 80 kg of raw material and not 100 kg of raw material। तो ऑर्डर कितने का आया था उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता साहब, जितना सप्लाई हुआ है उसके ऊपर टैक्स लगता है। ऐसे यहाँ पे उन्होंने एक बात बता दी। एक एग्जांपल यहाँ पे ये कर लेते हैं, इलस्ट्रेशन 1। अ मशीन हैज टू बी सप्लाइड एट साइट। ओहो, अब एलिवेटर की बात करता हूँ। एलिवेटर क्या होता है, एलिवेटर के जो पार्ट्स होते हैं वो अलग अलग ट्रक में से, अलग अलग सिचुएशन में से आपके पास आते हैं, ठीक है ना। एलिवेटर्स के पार्ट जो होते हैं वो अलग अलग ट्रक में से यहाँ पे आपकी जहाँ पे बिल्डिंग होती है वहां पे आ जाते हैं, और वहां पे वो असेंबल्ड होते हैं। एलिवेटर कभी पूरा का पूरा जो लिफ्ट होती है वो पूरा का पूरा कभी बन के वहां पे नहीं आएगा, ठीक है ना, पार्ट्स में आता है। उसको सेमी नॉकडाउन कंडीशन, सेमी नॉक एसकेडी या सीकेडी बोलते हैं उसको, ठीक है ना। एक होता है कंप्लीट नॉकडाउन कंडीशन और एक होता है सेमी नॉकडाउन कंडीशन, और वहां पे यहाँ पे आके असेंबल्ड होता है। मेजर काम तो साइड पे होता है। तो एक बार ये प्रोडक्ट बन जाएगा, एलिवेटर जब फिट हो जाएगा तो इसका मूवमेंट तो होगा ही नहीं, तो इट डज नॉट इन्वॉल्व मूवमेंट ऑफ गुड्स। तो इसको बोलते हैं सप्लाई एट साइट। तो गुड्स को सप्लाई किया जाएगा एट अ साइट, इसका मतलब होता है नो मूवमेंट। इसका मतलब होता है इनवॉइस इश्यू करने का जो डेट होगा वो अभी निकलेगा सेक्शन 31 सबसेक्शन 1 क्लॉज बी में से निकलेगा। और क्लॉज बी बोलता है सर मुझे इनवॉइस कब इश्यू करना पड़ेगा, बिफोर डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, बिफोर डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स आपको इनवॉइस इश्यू करना पड़ेगा। इट इज डन बाय सोर्सिंग वेरियस कंपोनेंट फ्रॉम वेंडर्स एंड असेंबलिंग द मशीन एट साइट। तो एलिवेटर का एग्जांपल आप माइंड में रखो। द डिटेल्स ऑफ वेरियस इवेंट्स आर गिवन फॉलोज।
17 सितंबर परचेस ऑर्डर पीओ दिया था इन्होंने कि हमको ऐसा ऐसा एलिवेटर चाहिए विद एन एडवांस ऑफ 50,000 इज रिसीव्ड फॉर मशीन वर्थ ₹12 लाख एंड एंट्री ड्यूली मेड इन द सेलर्स बुक्स ऑफ अकाउंट। पहले जब ये जीएसटी लॉ आया था तो ये 50,000 के ऊपर जीएसटी लग जाता था क्योंकि एडवांस है, लेकिन अभी नहीं लगेगा क्योंकि नोटिफिकेशन नंबर 66/2017 डेटेड 15 नवंबर 2017 इसको एक्सेप्शन प्रोवाइड करता है कि एडवांस के ऊपर आप टैक्स ना भरो, नहीं तो इसके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। 20 अक्टूबर मशीन इज असेंबल्ड, टेस्टेड एट साइट एंड एक्सेप्टेड बाय द बायर। तो ये हो गया डेट ऑफ डिलीवरी ऑफ गुड्स, ठीक है ना। एंड इनवॉइस इश्यू हुआ 23 अक्टूबर पे, ये गलत हो गया। इनवॉइस इश्यू हो जाना चाहिए था 20 अक्टूबर पे, आपने 3 दिन डिले किया इनवॉइस इश्यू करने के लिए, डिलीवरी के बाद आपने इनवॉइस इश्यू किया। 4 नवंबर पे बैलेंस पेमेंट आ गया। पेमेंट का डेट तो वैसे भी अभी काम का नहीं है, सप्लाई ऑफ गुड्स में पेमेंट का डेट काम का नहीं है। डिटरमाइन टाइम ऑफ सप्लाई इन द अबव सिनेरियो फॉर द पर्पस ऑफ पेमेंट ऑफ टैक्स। तो पेमेंट कौन से दिन भरेंगे, तो इन्होंने पूरा यहाँ पे लॉ लिखा हुआ है। लॉ लिखने के बाद ये नोटिफिकेशन का उन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। Effectively, in case of goods, no GST will be payable on advance of received in case of supply of goods। चलो ठीक है, देख लेते हैं। As per notification number 66/2017, CT मतलब सेंट्रल टैक्स, ठीक है ना, dated 15 November 2017, a registered person excluding composition supplier has to pay GST on outward supply of goods at the time of supply as specified in section 12 subsection 2 clause A, that is the date of issue of invoice or a last date on which invoices ought to have been issued, ठीक है ना। मतलब इसमें से पेमेंट हटा दिया उन्होंने। Therefore, the time of supply for the purpose of tax for entire amount of 12 lakh rupees is the 20th October, which is the date on which goods were made available to the recipient as per provision of section 31 subsection 1 clause B, and the invoice should have been issued on that date, ठीक है ना। इनवॉइस इस दिन पे इश्यू हो जाना चाहिए था। तो ये यहाँ पे पहला उन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है। तो दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड पहली केस में। दूसरा बात कर लेता हूं मैं, सेकंड प्रोविजन की बात कर लेता हूं। ये यहाँ पर अपना एक बेसिक हो जाता है। अब रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म ऑफ सप्लाई ऑफ सर्विस आप लोगों को पहले से पता है। वहां पे दो डेट थे, कौन से दो डेट, कौन से दो डेट थे वहां पे। सर्विस के केस में हमने सेक्शन की बात की, सर्विस के केस में हमने सेक्शन की बात की थी 13 सबसेक्शन 3। 13 सबसेक्शन 3 आरसीएम इन केस ऑफ सर्विसेज लगता है, ठीक है ना। और सर्विसेज के केस में हमने दो डेट्स की बात की थी, आपको अगर याद आ रहा है तो। पहला डेट था डेट ऑफ पेमेंट, और दूसरा डेट था 61st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस। मतलब गवर्नमेंट 60 डेज का वहां पे क्रेडिट पीरियड कंसिडर करता था, विच एवर इज अर्लियर के बेस पे हमें टैक्स भरना पड़ता था। अब यहाँ पे जो है सेक्शन 13 सेक्शन 12 सबसेक्शन 3, ये भी आरसीएम का ही है और ये आरसीएम गुड्स का है। ये आरसीएम किसका है, गुड्स का है। अब यहाँ पे क्या होता है, आरसीएम गुड्स का क्या होता है, यहाँ पे जरा ध्यान दो, ठीक है ना। आरसीएम गुड्स पे इन्होंने 3 डेट बोले हुए, क्योंकि यहाँ पे सप्लाई रेसिपिएंट के हाथ में 3 डेट रहेंगे। एक तो डेट होता है डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, एक तो होता है डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स कि कौन से दिन यहाँ पे गुड्स उसने रिसीव किए। सेकेंड होता है डेट ऑफ पेमेंट, तो डेट ऑफ पेमेंट तो था ही। और क्योंकि गुड्स इंडस्ट्री में क्रेडिट पीरियड 60 डेज का नहीं होता, उससे कम होता है, तो इन्होंने यहाँ पे बोला है 31st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस, 31st डे फ्रॉम डेट ऑफ इनवॉइस, whichever is earlier, ऐसे यहाँ पे बात की गई है। तो यहाँ पे आरसीएम में 3 डेट है। पहले तो आप यहाँ ये याद रखो, सेक्शन 12 सब सेक्शन 3 रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, टाइम ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू क्लॉज ए डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ गुड्स, सेकेंड है डेट ऑफ पेमेंट, एंड थर्ड है 31st डे, नॉट 61st, 31st डे फ्रॉम द डेट ऑफ इनवॉइस फ्रॉम द सप्लायर, whichever is earlier। और डेट ऑफ पेमेंट का आपको बात पता ही है, वो तो पहले से आपको पता है, एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट या डेबिट इन बैंक अकाउंट, whichever is earlier। और अगर ये नहीं कर पाओगे आप, यहाँ पे अगर आपके पास डेटा नहीं होगा, यहाँ पे 12 सबसेक्शन 3 में अगर आप डेटा नहीं कंप्लीट कर पाओगे, तो एंट्री इन द बुक्स ऑफ अकाउंट ऑफ रेसिपिएंट। ये बातें तो हमने सारी सर्विस के केसेस में भी कर ली थी और यहाँ पे भी वही करेंगे। चलो ठीक है, इसका एक दो एग्जांपल देख लेते हैं। इलस्ट्रेशन 2 में पेंडिंग रख रहा हूँ, वो कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स के केस में है। ये देख लो, इलस्ट्रेशन 3 देख लो। Determine time of supply from the given information. May 4,
सप्लायर इनवॉइसेस गुड्स टैक्सेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस टू ब्रिज एंड कंपनी। तो May 4 पे डेट ऑफ इनवॉइस है। डेट ऑफ इनवॉइस का यहाँ पे आरसीएम में कोई काम नहीं है। हाँ, उससे यहाँ से 30 डेज काउंट करने होते हैं। अब उन्होंने 30 डेज काउंट करके अपने को पहले से दे दिए। 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ इश्यू ऑफ इनवॉइस इलप्स ऑन June 3, ठीक है ना। अब June 3 हमारे काम का नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो 30 डेज है, वो टाइम ऑफ सप्लाई नहीं बन सकता, उस दिन टाइम पीरियड खत्म हो गया। तो 31st डे क्या हो जाएगा? June 4। जरा समझो, हमको 30th डे की जरूरत नहीं है, हमारा जो होता है डे होता है वो 31st डे होता है। तो उन्होंने जब June 3 तक की बात बोल दी तो हम June 4 तक बात करेंगे। May 12 को क्या हो रहा है? May 12 को हो रहा है आपका गुड्स रिसीव्ड, और May 30 को आपने क्या किया हुआ है? पेमेंट किया हुआ है। इन तीनों में से विच इज अर्लियर? तो विच इज अर्लियर में आ रहा है May 12। तो देखो यहाँ पे क्या बात कर रहा है, here May 12 will be the time of supply being the earliest of the 3 stipulated dates, namely receipt of goods, date of payment, date immediately following the 30 days of issuance of invoice. Here the date of invoice is relevant only for calculating 30 days। तो यहाँ पे उन्होंने वो भी क्लियर कर दिया कि यहाँ पे जो डेट ऑफ इनवॉइस है खाली डेट ऑफ इनवॉइस आपको खाली 30 डेज का पीरियड काउंट करने के लिए दिया गया, उससे ज्यादा उसका कोई भी रोल नहीं है। चलो ठीक है, उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। डिटरमाइन द टाइम ऑफ सप्लाई फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। चलो ठीक है, देख लेते हैं। May 4 पे क्या हो गया है? सप्लायर इनवॉइसेस गुड्स टैक्सेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस टू पिलर एंड कंपनी। सप्लायर इनवॉइसेस गुड्स टैक्सेबल ऑन रिवर्स चार्ज बेसिस टू पिलर एंड कंपनी। तो यहाँ पे डेट ऑफ इनवॉइस 30 डेज June 3 को खत्म होते, 31st डे हो जाएगा, फिर आपका 31st डे हो जाएगा आपका June 4, ठीक है ना। आगे June 12 को क्या हुआ है? रिसीव द गुड्स। June 12 को गुड्स रिसीव हुए हैं और July 30 को पेमेंट हुआ है। अब तीनों में का विच इज अर्लियर आ जाएगा June 4। तो देखो यहाँ पे ये उन्होंने बोल दिया है, हियर June 4 नॉट June 3, June 4 31st डे फ्रॉम डेट ऑफ सप्लायर्स इनवॉइस will be the time of supply being the earliest of 3 stipulated dates, namely receipt of goods, date of payment and date immediately following 30 days from the issuance of invoice under section 12 subsection 3। तो ऐसे आपको इसका कैलकुलेशन करना है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट बात नहीं है। मेरे पास लास्ट 5 मिनट बचे हुए, मैं बाकी के प्रोविजन आपको मैं बता देता हूँ कि खाली मैंने पढ़ा दिया, आपको कल ही पढ़ा दिया था ये सारा प्रोविजन, आज खाली आपको मार्किंग करा के देना है मुझे। 12 सबसेक्शन 4 मेरा कल ही हो चुका था। वाउचर के केस में मैंने पिज्जा का आपको एग्जांपल दिया था। जब हमें पता है कि पिज्जा की जो कंपनी उसने जो वाउचर सेल किया, तो कल अगर डोमिनोज या पिज्जा हट अगर वाउचर सेल करता है तो क्या वाउचर टैक्सेबल होगा? आंसर इज यस, क्योंकि उसके सामने कौन सा गुड्स सप्लाई होगा वो आइडेंटिफाइबल है। अगर सप्लाई आइडेंटिफाइबल है तो कौन से दिन पे टैक्स लगेगा? तो इश्यू ऑफ वाउचर, डेट ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर। और अगर बिग बाजार का वाउचर सेल हुआ है और बिग बाजार को अभी टैक्स बना है, लेकिन बिग बाजार को पता नहीं कि बायर कौन सा गुड्स परचेस करेगा, एग्जेम्प्ट गुड्स परचेस करेगा, 5% रेट वाला गुड्स परचेस करेगा, 12% का करेगा, 18% का करेगा कि 28% वाला गुड्स परचेस करेगा। इवन बिग बाजार डजंट नो अबाउट इट, क्योंकि जो गुड्स है वो बहुत सारे परचेस किए जा सकते हैं, रिडम्पशन कहीं पे भी हो सकता है। तो उन्होंने बोला उस केस में डेट ऑफ रिडम्पशन ऑफ द गुड्स वो आपका टाइम ऑफ सप्लाई हो जाएगा। रेसिडुअरी केस, जहां पे आपका सप्लायर जो होता है वो टैक्स इवेडर होता है, टैक्स का चोर होता है, तो वो दो टाइप के चोर हो सकते हैं, रजिस्टर्ड चोर और अनरजिस्टर्ड चोर। अगर रजिस्टर्ड चोर है तो उसको हम बोलेंगे कि आपको जो पीरियोडिकल रिटर्न भरने होते हैं, पकड़ने के बाद पीरियोडिकल रिटर्न जो भरने होते हैं उस दिन आपको टाइम ऑफ सप्लाई मान के उस दिन आपका टैक्स का पेमेंट प्लीज कर देना। और अगर आप अनरजिस्टर्ड चोर रहोगे तो जिस दिन आप पेमेंट करोगे वही दिन आपका माना जाएगा कि आज ही आपका टाइम ऑफ सप्लाई आ चुका है। ये तभी लगता है जब इन्वेस्टिगेशन होता है, ट्रक पकड़ा जाता है रोड पे, ये सब तभी की बातें होती है। बहुत ही रेयर होगा जो आपको ये सब, जहां पे आपको सेक्शन 12 सबसेक्शन 5 लगाने मिलेगा। सेक्शन 12 सबसेक्शन 6 वैल्यू एडिशन फॉर डिले इन अ कंसीडरेशन, ये मैंने बात बता दी थी। 13 सबसेक्शन 6, तो ये तीनों सेक्शन जो है ना, सबसेक्शन 4 सबसेक्शन 5 एंड सबसेक्शन 6, ये तीनों कॉमन है गुड्स के लिए और सर्विस के लिए, तीनों कॉमन सेक्शन में आते हैं। इंटरेस्ट, लेट फी, पेनाल्टी फॉर डिले इन कंसीडरेशन का टाइम ऑफ सप्लाई होता है जिस दिन आप रिसीव करोगे उसी दिन इसके ऊपर टैक्स लगेगा, ठीक है ना। तो ऐसी बातें मुझे बतानी थी। यहाँ पे मेरा मेन सेक्शन खत्म हो जाता है, लेकिन अभी भी कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ सर्विस की बातें पेंडिंग है, वो हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो प्लीज आप मुझे रीज्वाइन करिए 12 बजे, ठीक है ना। प्लीज रीज्वाइन में 12 o'clock। जितना मैंने पढ़ाया हुआ है आई होप आपके पास इसकी सॉफ्ट कॉपी है, नहीं है तो आप टेलीग्राम चैनल से भी डाउनलोड कर सकते हो, आप मुझे व्हाट्सएप कर दो, मैं व्हाट्सएप पे शेयर कर दूंगा। लेकिन ये आपको रीड करना है
समझना है, प्रोसेस करना है, और 12 बजे हम इसके एडवांस प्रोविजन जो है, जो कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ गुड्स एंड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ सर्विस के केसेस में लगते हैं या एक्सेप्शनल केसेस है, वो पढ़ लेंगे और पढ़ के इस चैप्टर के एमसीक्यूज वगैरह करके चैप्टर खत्म कर देंगे आज, ठीक है ना। चलो, सो प्लीज रीजॉइन में 12 o'clock।